अस्सलाम वालेकुम जी। खाना पीना जीना का आज का एक बहुत स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम मिलेंगे जैद हमीद को। जैद जो हैं वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, टेक्सटाइल पढ़ाते भी हैं कराची के कई इंस्टीट्यूट्स में, और बेसिकली ही इज़ अ कलेक्टर। आपको उनके घर को देख के अंदाज़ा होगा। और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ कैरिंग फॉरवर्ड 2 और 3 जनरेशन्स ऑफ रेसिपीज़। कराची टिफ़िन कंपनी का अगर आपने नाम सुना हो तो ये अपनी नानी की रेसिपीज़ कराची टिफ़िन कंपनी में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो वी आर हियर एट हिज ब्यूटिफुल होम टुडे इन गुलशन इन कराची, एंड ही विल बी कुकिंग फॉर अस, एंड इट्स अ रियली स्पेशल रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा खाना होगा, थोड़ा सा पीना, क्योंकि जैद जो है बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के शरबत भी बनाते हैं। और जहाँ तक जीने की बात है तो ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट हिज लाइफ। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। Seeing so many fabulous things here, and I just want to know that have you collected them? Are they coming through generations? What's happening is that I think a lot of this is my collection. Yeah, And then along with that, I feel that there were a lot of things that were like daily use items of my nannies right. or of my nanas for that matter. And मतलब उनके लिए वो एक रोजमर्रा की चीज थी Yeah. मगर I felt कि वो जब like when I got like all of these things were passed down to me Mm, तो मतलब nobody wanted to claim them and they were like okay fine what है पुरानी डब्बी yeah. के साथ हम क्या करेंगे so I was Yeah. like please मुझे दे दे मेरे लिए treasure है. Yeah. So then like for example like this little dibbi was my nani's pandan like when she would go to the dawats and things हाँ, so she would make a little pans and keep them and in her little potli. खुलता है। हाँ हाँ बिल्कुल इसके अंदर शायद बीज वगैरह भी होंगे तो ये सारी चीजें मैं कलेक्ट करता रहता हूँ अभी कि तक पान की खुशबू है। हाँ, this corner is basically dedicated to like the womanhood or the power of woman like where they talk about like nurturing और वो egg के साथ है फिर सुरमादानी और ये सारा रोशनी और mm. खूबसूरती came together like I that. think it's very important to say that because a lot of people just buy stuff to put in the house. बट Yeah, असल में घर तब बनते हैं जब आपकी मेमोरीज के साथ या एसोसिएशन हो, जनरेशनल एसोसिएशन हो, प्यार की मेमोरीज हो छोटी छोटी चीज़ों के साथ, absolutely एंड दैट एड्स टू $110. या इट मेक्स द एसेंस ऑफ अ होम। I was born in a house on Bandar Road. राइट। So I was actually raised amongst a colonial past का our apartment building was an art deco building and उसमें पूरी वो frescoes छत के ऊपर हुए. It was a Hindu property that we kind of took over. तो उसके अंदर ये था कि अंदर पहले गैस तो होती नहीं थी कोल्ड रूम होता था ओके। किचन्स के बराबर. तो किचन्स यूज्ड टू बी रियली स्मॉल ओके एंड उसके बराबर में कोयले का कमरा होता था बड़ी सी लाइक एन इनसाइड टैंक काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें कोयला रखा जाता था. ओके। तो my nanny would make the achar over there. ओके। तो वो cold room was one of those like a place where nobody would राइट। go उस राइट। तरह से. राइट। So it was like everything was a इंटरेस्टिंग। ritual at that time. I feel it was like every process was very honored. And you've been carrying those traditions forward. I'm trying to. Yeah, I'm I mean trying my by best. preserving, so lots of expectations now from the food you're going to make because it's a tradition that's carried on for years and years. And आप मुझे बता रहे थे कि आपको 8 साल की उम्र पे एक आलू दिया, आलू उबला दिया हुआ. गया था That was हाँ. your first experience with food. That was my first experience where the cooking was kind of encouraged like Yeah. go for it like so in my household like there wasn't any one of those like tabooed like situations के नहीं लड़का सिलाई नहीं कर सकता नहीं आपको Yeah. कढ़ाई नहीं करनी है. So like I was exposed to like embroidering. So my mother is a great she does beautiful embroidery Yeah. like my nanny used to do really beautiful chicken curry. तो ये सारा का सारा like I think because I've been brought up in a very woman centric Yeah. sort of household like all of these things were very much sort of like encouraged as art forms. Right. It wasn't something कि नहीं नहीं ये इनको कढ़ाई नहीं करनी चाहिए. So आलू के साथ नमक चाट मसाला डाल के मैंने बनाना शुरू करी. Like I think the first chicken salan that I ever made, I think it was in class 5. I was given one leg piece Okay. chicken and I was given one onion and one potato and I was like let's make chicken aloo ka salan. Now my expectations are getting very high. The more you're talking about this, मैं कहा, इतने सालों से you're cooking. Well, I hope so कि it's not disappointing, but No. but the first salan that I made was doused
in salt like it. My duty was to add salt to things. Okay. You know, so it was the most namkeen salan. It was atrocious. But I think वो वक्त के साथ साथ वो चीजें हाँ, होना शुरू हुई, हाँ. develop होना start Yeah. हुआ, and like you know, I was just always observing and. So Zaid, tell me, where is the origin? Where is your origin? Where are you from? Okay, so I Can belong we to the spend, हाँ, Memon community. right? Okay, and obviously most of the Memon community comes from Gujarat. Right. सही है, तो हमारा गुजरात से काफ़ी वो था, तो a lot of the food that we make also Exactly. has a huge amount of Gujarati influence. वही मेरा मतलब था कि बिल्कुल. cuisine पे किस जगह की Absolutely. And then there's a lot of like food that kind of like, you know, sort of got into the family because of my nani traveling here and then. Right. Like, you know, कि होता है कि अच्छा say, you know what, I want the deviled eggs or I want this. Okay. तो उस तरह की चीज़ें जो आपका like, you know, maybe it was predominantly देसी खाना, but also एक होता है कि डिफरेंट आपकी जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के आपके अगर है कि बर्मा का इन्फ्लुएंस आ रहा है या आपका कोई थाई इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वो सारी मतलब हमारी देसी वर्जन्स के अंदर वो इनकलकेट होना स्टार्ट हुई थी. Right, right. तो And how much of this do you offer in the Karachi Tiffin Company? okay, so I am offering I think some of I have like you know if I have to expose then like you know वो तो शायद 200-300 रेसिपीज हैं, वो सारी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से आई एम प्रॉब्ली maybe tip of the iceberg 5% मैं इस वक्त ऑफर कर रहा हूँ अपने your own मेन्यू पे. cuisine is what you're presenting, right? So it's a lot of it. So in on my menu, like I would say 50% is what my nani's recipes Right. are in their original form. Right. And then 50% is something which has been me sort of like, you know, doing a version or playing on her sort of like, you know, central idea. Or also like, you know, so I love documenting recipes. So मैं ये भी कर रहा हूँ कि like, you know, if I'm learning something from a friend's mother or something, so I sort of like, you know, dedicate the recipe to their name and I Okay. sort of like, you know, Nice, place it nice, on my menu. nice. That, for example, And it's a passion project, right? it's a passion It's a project. passion project. It's Like a your passion. home is a passion project. So, yeah. It is. Home तो मेरे ख्याल से पता नहीं passion project कहूँगा या नहीं कहूँगा, but Yeah. it's something, I think it's an obsessive sort of a thing. So I sometimes sort of like, you I know, can tell. मैं सोचता हूँ कि मैं, am I a hoarder or am I a collector? Like, you know, I justify it to myself. I'm like, you know, कि I am a Right. collector. No, it's हाँ, fine. Hoarders just stuck everything under the sort of like, you know, हाँ. bed. But कभी-कभी डर भी लगता है. हाँ. मगर खैर शौक है. Absolutely, absolutely. पूरा ये मैं करें. सवाल ये बाद में पूछूंगी कि ये इसकी सफाई कौन करता है, लेकिन क्योंकि इसकी फिर सफाई मैं खुद जाती तौर पे करता हूँ. ये कोई नहीं कर सकता वरना. No, I'm so possessive. Like if I break something, it's okay. I can get angry at myself. Yeah. But if somebody else breaks it, then that's it. That's it. They've had it. अच्छा, so Zed, what are you cooking today? So what I'm going to be making it's a very typically Memon traditional dish. It's called bajre ke aate ke kebab. Okay. Okay. Now the tradition goes कि हमारे यहाँ जो है वो पहले रोजे पे सही है बाजरे के आटे के कबाब जरूर होते हैं along with आलू गोश्त Okay. and डबल रोटी का हलवा. Okay. तो ये that's like one of those like Set menu. set menu for the first Amazing. of Ramzan. Okay. You know, so and our household has always had a set menu. Like, you know, that Monday is vegetable pulao, Right. Tuesday is a chicken dish, then Wednesday is dal and mixed sabzi, then Thursday is a gosht ka salan, Friday is biryani, like I think everybody's household has it. And then Saturday and Sunday is a little flexible. Okay. So, you know, हमारे यहाँ मतलब एक pattern, but उसी के पे versions बनते रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के. Nice. Yeah. So we're recording after Ramzan. अगर हम पहले करते तो we would have like आपको शायद presented वो the recipe for Ramzan. बिल्कुल लेकिन ये absolutely. it can be made any time of the year, of It course. can be made any like हमारे यहाँ वो मतलब it's something that mostly it's enjoyed very much so during the winter months also because Yeah. बाजरे का आटा जो है वो एक सर्दियों की सौगात में से आता है. तो बिकॉज इट्स अ गरम उसकी जो तासीर उसके कहते हैं जो गरम होती है, तो ज़्यादातर सर्दियों में होता है, बट यूजुअली थ्रू आउट लाइक यू नो इट्स वन ऑफ दोस लाइक फ्रिटर्स जो कि आप कभी भी इस्तेमाल करें, मतलब इट्स लाइक अ नाइस एपेटाइजर. ओके, आई एम रेडी, लेट्स कुक देन. लेट्स गो. तो हम लोग लेंगे आधा किलो गोश्त. ठीक है. सो ये बाजरे के आटे के कबाब में बेसिकली यूजुअली ट्रेडिशनली बीफ इस्तेमाल होता है. ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है. ठीक है. सो इससे बेसिकली बिल्कुल मोटा मोटा सा कुटा हुआ होता है. और उसको हम
एक आइडियली सबसे बेहतरीन होता है कि इफ़ यू जस्ट मैरिनेट इट अ डे इन एडवांस, लाइक द ठीक है। नाइट बिफोर, इफ़ यू मैरिनेट इट विद लाइक 2 teaspoons of papita and 2 teaspoons of लहसुन एंड अदरक, ठीक आधा है। किलो गोश्त। ठीक है। ठीक है, ये सारे ग्रीन्स भी हम उसके साथ ऐड करते हैं। ग्रीन्स को आप ऐड करें वंस यू आर रेडी टू फ्राई। तो ये मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। नमक ऑल्सो शुड ऑलवेज बी पुट ऑलमोस्ट टूवर्ड्स कुकिंग। ठीक है। ओके, बिकॉज अगर नमक गोश्त पे कभी कभी लगा देते हैं इस तरह से तो अक्सर गोश्त टफन हो जाता है। 1 टीस्पून जनरस धनिए का, उसके बाद फिर अबाउट 1 टीस्पून जनरसली ऑफ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, then we're going to use our लाल मिर्च 1.5 to 2 teaspoons, सॉल्ट हम डालेंगे टू टेस्ट। अच्छा, सॉल्ट आपने उस कंसिडरेशन के साथ करना है कि यू विल बी एडिंग बाजरे का आटा टू इट, ठीक है, तो सॉल्ट उस हिसाब से होगा। अच्छा, उसके साथ फिर हम ये करेंगे कि हम तकरीबन 2 हरी मिर्चें ले लेंगे। तो ये हमने हरी मिर्च डाल दी थोड़ी सी, 2 tablespoons ऑफ दही, ठीक है। ना दही इंटरेस्टिंग, क्या करता है कि वेरी दही इसको इंटरेस्टिंग। मैंने बिल्कुल कबाबों में दही कभी नहीं देखा। टेंडराइज करता है अच्छी तरह से। अभी इसमें आटा नहीं डाला? अभी इसमें आटा नहीं डाला है, आटा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ऐड करूँगा। अच्छा। तो ये अब बेसिक मसाला हमने सारा गोश्त के अंदर जब मिक्स कर दिया है, सो दिस इज़ समथिंग बेसिकली, ये इस तरह से है कि ये हमारा मसाला एक रात पहले से लगा हुआ है। ग्रीन्स हम लोग ऐड करेंगे ऑलमोस्ट व्हेन इट्स रेडी, बट यू जो ड्राई स्पाइसेस के साथ है वो आप उसको पहले से मैरिनेट करके रखें क्योंकि उसमें अच्छी तरह से मसाला बैठ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर तकरीबन आपने 1 कप बाजरे का आटा आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है। इट शुड फॉर्म लाइक अ कबाब। नाउ पानी बहुत ज़्यादा अचानक से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सो दैट इट डज नॉट ओवरवेलम द, मतलब आपका बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। पतला होगा तो आपको आटा और ऐड करना पड़ेगा, और आटा अगर आप और ऐड करेंगे तो फिर वो इट विल बिकम वेरी डोई। So we need it to be the right amount of atta also and the right consistency. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक हम गूंद रहे हैं कबाब को, है बिल्कुल, ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो approximately this would probably take about a quarter cup of water, not more than that. Just to give you a reference, this would be like how you make a very gloopy pakoda का जो एक होता है ना, just a little more atta and just a tad more water, and that's it. So we are pretty much done with the entire mix. Now, under normal circumstances, you can let the mix rest for a little bit also, ताकि वो पूरा का पूरा साथ में रच बस जाए। Okay, so this is novelty. Like I've never seen dahi in kebabs. I've never seen pani se goonde हुए kebab. So I'm really looking forward to this. So yeah, this is interesting. अच्छा, दही की बात ये होती है कि अक्सर कबाबों में अगर आप देखेंगी तो जो गलावटी कबाब होते हैं या इस तरह के कबाब होते हैं उनमें दही हमेशा होता है। दही एंड मीट जो है, इट लाइक यू नो, जिस तरह से हम लोग पराठा भी देखते हैं तो अक्सर पराठे के अंदर भी दही डाल के गूंदते हैं। तो what it does, it sort of like, you know, gives it a very nice rich milky kind of an undertone in flavor, and then after that like creaminess आती है, और उसके साथ साथ फिर it also helps tenderize the meat. Right, right. So it's usually something that is added to all the kebabs, but yes, बाजरे के आटे के साथ, गोश्त के साथ, like you know, कि it kind of like becomes very wholesome and Yeah, interesting. yeah. Absolutely. इसको हम पहले ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा एक पीस डाल के कि इफ़ द ऑयल इज़ हॉट, लाइक अच्छा, क्योंकि दिस इज़ मीट, दिस इज़ रॉ मीट बीइंग फ्राइड, तो हमें ऐसा करना है कि हमें इसको लो फ्लेम पे स्लोली फ्राई करना है, ठीक है। एंड वी डोंट हैव टू मूव द कबाब्स अराउंड। एक दफ़ा डालते हैं, उसके बाद फिर हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, नाउ इफ़ द कबाब स्टार्ट टू फॉल अपार्ट, अगर वो टूटना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये कि बाजरे का आटा ज़्यादा कम है।
तो बाजरे का आटा आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लाइक देयर अ फ्यू थिंग्स जो आपको ऑब्जर्व करनी है और उस हिसाब से आपने उसमें ऐड कर देनी है। अच्छा जी, तो ये हमारा कबाब के इस तरह से हमें छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, बट नॉट वेरी टाइट, लाइक नॉट लाइक कोफ्ता टाइप ऑफ बॉल्स। वी हैव टू मेक लाइक रफ बॉल्स कि उसके अंदर वो डिफरेंट एजेस आए, ठीक है। और उसको फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप कर देना है। Almost like a pakora. Almost like a pakoda, pretty much like a pakoda. Like a pakora, है ना? Yeah. और एक वक्त में बहुत सारे नहीं डालने हैं बिकॉज दीज ब्रेक वेरी इजीली। तो 10 to 12 डालें, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर कढ़ाई ऑल्सो। और हमें स्लोली स्लोली इनको डाल के इनको हिलाना नहीं है फिर, ठीक है। हिलाए बगैर इनको थोड़ी देर कुक होने देना है ताकि वो फर्म हो जाए अपनी जगह पे, और उसके बाद फिर हम इसे स्लोली मूव करेंगे। तो आप हमेशा फ्राइंग के अंदर एक टेस्ट का एक आध आप कबाब चेक कर लिया करें ताकि उसमें आपको फिगर आउट हो जाए कि द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इज़ करेक्ट, द साइज इज़ करेक्ट, यू कैन चेक द सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अच्छा, अनदर थिंग दैट हमारे घर में होता है कि सर्दियों में, जैसे अभी तो मैंने डाले स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज डाला है मैंने। सर्दियों में ये होता है कि हम लोग इसके अंदर हरा लहसुन भी डालते हैं, सो इट बिकम्स लाइक अ विंटर स्पेशल, एंड उसकी काफ़ी मज़ेदार सा उसका एक टेस्ट इम्पार्ट होता है। आप लोगों के घर में शायद हरे लहसुन की चटनी तो अक्सर लोगों के घर में बनती है, तो ये हरा लहसुन, लाइक यू नो वी यूज़ हरा लहसुन अ लॉट, जैसे फ्राइड एग्स के अंदर बहुत मज़े का लगता है विद सॉल्ट एंड पेपर। अब बस ज़्यादा हो जाएंगे। एक और डाल। Okay. तो ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए स्लोली। मैंने इसको बिल्कुल हिलाया नहीं था, मैंने इसको बिल्कुल जेंटली आराम आराम से मैंने इसको कुक होने दिया था। तो यू शुड लाइक ये ब्यूटीफुल से ये ब्राउन होने चाहिए। ये होगा, उसके बाद फिर हम एक और बैच कर लेंगे फ्राई। हल्का सा दबा लेना है बस, डाल देना। बेहतरीन कबाब। तो तकरीबन हो Well चुके done. हैं, दिस इज़ आवर लास्ट बैच। और इसको हम बस 1 मिनट के बाद ऐसे, लाइक यू नो कि दिस शुड टर्न इनटू दिस लवली गोल्डन काइंड ऑफ अ कलर एंड दिस शेप। तो अब उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके डेलिकेटली, बिकॉज व्हेन द कबाब्स आर गरम वो भी उनको टूटने का चांस होता है, तो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल जेंटल विद देम, अ लिटिल पेशेंट। I think it और goes for all food. That आई the more patient you are, the more loving the process is, उतना ही मजा आता है। 110%, आई बिल्कुल। कांट एग्री मोर। जिस चीज को भी आप जल्दबाजी में बनाएंगे
उसका एब्सोल्युटली, जिस तरह से जायका नहीं कबाब भी निकलेगा। होता था कि पहले हम सिलबट्टे पे पीसते थे, उसका रेशा ही अलग होता है जो कि आप मशीन में एक शामी को आप बना बिल्कुल रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल इट्स जस्ट नॉट द सेम. बिल्कुल। सो बट आई फील कि लाइफ हैज बिकम अ लिटिल फास्ट पेस, तो या वी ट्राई एंड अकोमोडेट थिंग्स जो कि हम लोग जेंटली कर सकते हैं. बट जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे आई थिंक वो गिरना खाना पड़ता पे है। स्पेशल ओकेजन का बनता चला जाता है जहाँ एब्सोल्युटली। पे आपको इतनी जेंटलनेस रिक्वायर्ड होती है. हाँ दैट इज ट्रू। सो हमने पहले बात की थी कि ये एक रमज़ान स्पेशल है कबाब, बट आज एब्सोल्युटली. वी आर सर्विंग इट विद खट्टी दाल। जी बिल्कुल, खट्टी दाल है, पालक पनीर है. ज़बरदस्त। तो उसके साथ हम लोग ये खाएंगे और होपफुली आप लोग इंजॉय और करेंगे. चावल। और चावल, जीरे वाले चावल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुशबूदार महक के साथ. लेट्स गेट टू द टेबल देन। डन. So this is absolutely amazing, and you know what you've done is you've stirred a sense of nostalgia in me. I really miss now my dadi and my I've never tasted my nani's cooking, but my mother's cooking, ओके. and she's really old now, so उनको भी recipes भूल गई हैं. अच्छा. But अब मैंने सोचा है कि मैंने अब जब करना होगा I'm just going to come to your house. नो नो प्लीज, आई थिंक इट विल बी राइट. एंड यूजुअली जिस तरह से हमारे यहाँ सर्व होता है तो लाइक इफ यू हैव द कबाब्स वो दाल के साथ या किसी सब्जी के साथ सर्व हो रहा होता है. What I love is that to the maximum effect, everything is made at home. Like this paneer on the palak is घर की paneer. अच्छा, समोसों के जो रैपर हैं वो भी घर के बने. You're kidding me. नॉट एट ऑल. Okay, let's try then. तो ये हैं कीमे के समोसे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स आई फील कि रमज़ान में पहले रोजे में सर्व होते हैं और And- ईद के पहले दिन भी हमारे यहाँ ये And कीमे this was your khala, right? दिस इज माई This is your khala who said कि समोसे बनाए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी. It's like it's so. ज़रूरी होता है आई थिंक समोसे. ये खजूर और इमली की चटनी है. This goes with the samosa. गोज विद द समोसा. Please, you must take as well. I'm not going to eat alone. ऑफ कोर्स. Okay. कबाब दही के साथ खाते हैं. Wow, ठीक है. And this is also your recipe, right? दिस इज गुलाब का शरबत जो हाँ. कि माय नानी यूज्ड टू मेक इट एंड दैट हैज बीन पास्ड डाउन टू मी. नाउ लेकिन ये घर का गुलाब का घर का शरबत. बना हुआ है एंड आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक पुट दिस आउट एट KTC. तो अ लॉट ऑफ शरबत्स माय नानी यूज्ड टू मेक एट होम. Right, तो वो right, right. सारे के सारे शरबत अब मैं KTC. स्ट्रॉबेरी का नई इन्वेंशन है ठीक जो है. कि मेरी है. सही बट ये है. गुलाब, मोतिया, इलायची और ज़ाफ़रान का शरबत ये सारे घर पे हमारे यहाँ बनते हैं. Amazing, amazing. तो Okay. बिस्मिल्लाह करें. Amazing. यू अप्रूव. Oh, ओके. there's so much love in it. और घर की जो बात होती है ना मेरे को एक खास मसाला है which I'm not accustomed to. It's a very distinct taste. It's really good. I can't put my finger on it. I think it must be one of the masala mixes. Maybe it's a garam masala घर का It's जो आपको गरम था. मसाला हमारा होता है और इसके अंदर there's a lot of हरा लहसुन in it. तो maybe that is kind of like giving that really garlicky and उसमें बहुत एक umami एक Yeah. है like there's a lot of like salt in it. So that's why it's usually paired with like a मीठी चटनी क्योंकि इसका जो सारा salt का एक वो होता है वो आपका and शीर खोरमे के साथ होता है ये. तो कड़क पूरी, शीर खोरमा और समोसे. That's the basic most नाश्ता that we put out on the table as the guests come in for Eid. And the litmus test, your kebab. Oh no, fingers crossed. Well, I mean, ये आप दही के साथ भी खाएं. That also kind of neutralize. मैं डाल दूँ? thank दही you. is also घर का. So it's creamier, sweeter. Amazing. Is it fine? It's got a chew Mm-hmm. to the meat. It's not like keema नहीं है ना क्योंकि बिल्कुल. हाथ का कुटा हुआ मीट है. बिल्कुल. And there's so much flavor in this. It almost reminds me of वो Arabic क्या होते हैं? A falafel. It looks like a falafel. Yeah. और consistency भी कुछ वैसी है, but of course this is keema. मैंने आपको पास कर दिया शायद. मुबारक. बहुत शुक्रिया. But thank you so much. We're going to eat this at leisure. And thank you for all the hospitality and sharing your family love with us.
It was a delight. Thank you for actually having me and giving me that chance and opportunity to be able to talk about my family and the food that been we've grown up eating. Yeah, yeah, absolutely. And I hope that you get to that book. And I hope Inshallah. you introduce all these In wonderful the recipes in your book so you can share them with the world. Thank you for sure. Looking forward to it.